Okay, so in this part, we are going to think about uh, till now what we have done is, before we will move on to this part, we have done what is molecular orbital, how they are going to form, type of molecular orbital and types of bond form, right? So sigma bond, then what is going to happen. Now we are going to focus on, right? We are going to focus on, today we are going to focus on bond order, bond length and bond, let's say energy or strength parameter and magnetic nature, all those things. So there is one thing is called um, energy of molecular orbital, है ना? Energy order of molecular orbital, which you have to remember, ठीक है? So we'll starting by so this is based on experimental data, so you have to remember as it is, ठीक है? इसमें कुछ भी ऐसा ट्रिक व्रिक नहीं है कुछ भी, right? Now if total number of electrons है ना, is more than 14 in a molecule, you know, this is first case. Let's say example N2 F2 N2O2, sorry, not N2, more than 14, no? So O2 F2, not N2, etc. O2 and F2, okay? Then energy order is सबसे पहले जब भी कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे तो we are going to write bonding molecular orbital first. So sigma 1s, sigma star 1s, ठीक है? इसी तरह से sigma 2s, sigma star 2s, ठीक है? Sigma we are going to have 2pz, pi 2px, and both are having equal energy, so equal pi 2py. Then pi star 2px, pi star 2py, then sigma star 2pz. So this is energy order. Now let's understand how they are going to be formed, है ना? सब बन कैसे रहा है? We are going to say, let's say example over here. We are having oxygen. Oxygen is nothing but 1s2, 2s2, and 2p4. So this is oxygen, which is having 8 electrons. जल्दी से लिख लो इसको. So two oxygen are going to combine. So in O2, two oxygen, let's say molecules are going, atoms are going to combine. So one oxygen atom, let's say I'm writing here, one oxygen atom here, and I'm writing energy of these, you know, let's say orbital. So 1s, it is having 2 electrons. Then after 1s, 2s will come, and 2s is going to have more energy. So like that. Then we are going to have 2p. So atomic orbitals are going to be like this. थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं. So this is 1s, this is 2s, 2s, 2p,
2p, है ना, both oxygen atom. They are forming O2 molecule. They are forming O2 molecule. So how they are forming O2 molecule? This लिखो जल्दी fast. Energy order. ये याद रखना है. Then अब ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करो. What I am saying. So I have filled both oxygen atoms. ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं. So what will happen? Molecular orbitals will be formed. भरेंगे भी नहीं, we will fill later. So one is going to be like this, one is going to be like this. ठीक है, this is sigma 1s, sigma star 1s. इन दोनों 1s से मिल रहा है, इसलिए sigma 1s. फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. Now what is happening here? क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, ये तो like यूनिफॉर्म था, स्फेरिकल, यूनिफॉर्मली स्फेरिकल था. यहाँ ओवर हियर है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग टाइप की एनर्जी हो रही है. तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड या स्टेबल बॉन्ड क्या रहता है, सिग्मा, है ना. सो सिग्मा की एनर्जी कम, राइट, देन पाई. सो हियर वी आर गोइंग टू हैव, है ना, 3 ऑर्बिटल इधर है, 3 ऑर्बिटल इधर है, 6 टोटल 6 बनेंगे. तो 2pz are going to combine, then this is going to form sigma 2pz, and this is going to be sigma star 2pz. Can you understand? This is symmetric, मतलब ये जितना नीचे जाएगा सिग्मा स्टार उतना ऊपर जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, है ना, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना. जो ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ऊपर जाएगा, राइट. सो दैट्स व्हाई. सो सिग्मा स्टार. नाउ इन बिटवीन कम्स like this. So these are the, let's say, distribution, these are the formation of molecular orbital. You can write pi 2px equals to pi 2pi and pi star 2px equals to pi star 2pi. Now that's why I have written the order. You have to remember like this: 1s, 1 star, sigma star 1s, then 2s, sigma star 2s, right? Sigma 2pz. आपको याद रहेगा, पहले सिग्मा सिग्मा बन रहे हैं, है ना. एसएस में तो सिग्मा ही बनने वाले हैं, एसएस ओवरलैप से, राइट, है ना. पीपी ओवरलैप से सिग्मा और पाई दोनों बन सकते हैं, तो सिग्मा विल कम, देन पाई विल कम. Now what is going to happen is we are going to fill the electrons. So how many electrons in O2? Total number of electrons? That is 16. तो यहाँ पे लगेगा आपका अबॉव रूल. जिसकी एनर्जी कम है ना, वो सबसे पहले भरेगा. तो A1 2 भर गए, 2 4 6 8 10 11 12 13 14. ठीक है, 14 भर चुके हैं, हमें भरने कितने, 16. यहाँ पे क्या होगा, 1 and 1. ठीक है, ऐसे 1 1. यहाँ लगेगा हुंड्स रूल. इन दोनों की एनर्जी बराबर है ना, तो पहले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आएगी, मतलब ये दोनों पेयर नहीं होंगे. दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस, एंड दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है एंड O2 इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक. ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसी को ऐसे लिख सकते हैं, और O2
वी कैन राइट सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। हमको हर बार ये ड्रॉ नहीं करना है, हमको पहले ये एनर्जी ऑर्डर लिख देना है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, फिर याद हो जाएगा। राइट सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2p, आपको ये याद रखना है 1s 2s 2p ऐसे जाएगा, पहले सिग्मा आएगा फिर पाई आएगा, ठीक है। तो राइट तो सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px। वेट लोगों को डाउट आ रहे हैं, सबके डाउट लिए जाएंगे, वेट फिर कुछ कुछ और बातें हैं वो याद देख लेते हैं फिर। like this, now you have to fill the electron, so you just say okay, दो यहाँ आ गए, 2 4 2 6 2 8 2 10 12 2 14 15 16, ठीक है। इसको बोलते हैं, और ये है 0, मतलब यहाँ तो कुछ है नहीं। दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि ऑक्यूपाई है ना। शॉर्ट में बोलते हैं होमो, है ना, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल which is occupied, ठीक है। एंड दिस वन is called lowest unoccupied molecular orbital, in short LUMO। so then you understand कि भाई ऐसा अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, क्योंकि इसके आगे बनाएंगे अगर हम, इसके आगे भी बना सकते हैं ऐसे, है ना, 2s 2p के बाद 3s 3p, राइट, सब अनफिल्ड है, राइट, इस तरह से। तो अब ये बातें आप लिख लो, ठीक है। हाउ वी नो, हमने बताया था, आई हैव टोल्ड यू दैट कुछ रूल लगेगा यहाँ पे, तो जिनकी एनर्जी बराबर होगी उनमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले, मतलब आप मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से देखोगे, ठीक है, ये लिख लो। हाँ भाई, इस प्रोसेस में किसी को अगर डाउट आ रहा है तो पूछ लो। ज्यादा जूम आउट हो गया, ओके। ये मैं चाह रहा था ये डायग्राम बनाने के लिए, जिन लोगों ने नहीं बनाया हो, फिर चलते हैं देखते हैं एक बार, अब ठीक है। एक ही पेज है अभी, अच्छा, ये पाई एनर्जी इक्वल्स कैसे हैं, एक तो आप ये समझ लो कि एक्सेल ओवरलैप हो रही है, सॉरी इक्वेटोरियल ओवरलैप हो रही है, लेटरल ओवरलैप, राइट, ठीक है। तो लेटरल ओवरलैप हो रही है तो क्या होगा, दोनों के केस में बराबर होगी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं एक्सेल से, तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर देखेंगे तो सेम रहेगा, है ना, ओरिएंटेशन वाइज देखेंगे मतलब। तो दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड कि इनकी एनर्जीज बराबर रहेगी, नहीं तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। सो दिस ऑर्डर हाउ वी आर गेटिंग, उसका मैंने तुम्हें कुछ सेंस बता दिया कि ये कैसे बन रहा है, राइट, कि पहले 1s आएगा उसके कारण बनेंगे, 2s आएगा उसके कारण बनेंगे, ऐसे बनेंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस ऑल्सो। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, जो की पॉइंट है, वो है यही एनर्जी ऑर्डर। बस अगर दो एनर्जी ऑर्डर है, अगर आपने ये दो एनर्जी ऑर्डर याद रख लिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन है सब आपसे हो जाएंगे, ठीक है, सारे। ठीक है, बस ये एनर्जी ऑर्डर याद रखने हैं, और उनको याद कैसे रखना है वो मैंने थोड़ा आपको हिंट दे दिया है। पहले आप 1s लिखोगे, 1s में सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर 2s लिखोगे, सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर 2p में सिग्मा और पाई आएंगे, देन वी आर गोइंग टू से कि देखो सिग्मा पहले आएगा फिर पाई आएगा, राइट, देन पाई स्टार सिग्मा स्टार, राइट। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अब वी आर गोइंग टू मूव, तो इसे कंप्लीट कर लो। हाँ, अभी भी किसी को डाउट है पूछ लो। एक मिनट। हाँ भाई बताओ, क्या डाउट है? हेलो सर। हाँ हाँ सर, मुझे पूछना था कि सर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बन सकते हैं कि पॉलीएटॉमिक के लिए भी बन सकता है? पॉलीएटॉमिक के लिए बन सकते हैं, गुड क्वेश्चन। बट एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों के सिलेबस में डायटॉमिक है। अच्छा। और सर मुझे एक और बात पूछना था कि सिर्फ सिर्फ होमोजेनियस मॉलिक्यूल्स में बन सकते हैं, जैसे कि O और O एटम मिलके बना रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा? हम हेट्रो की बात भी करेंगे। हेट्रो के बस हाँ। ऐसे डायग्राम नहीं पढ़ेंगे, फिलिंग कर लेंगे, एक दो एक्सेप्शन है वो मैं बता दूंगा हेट्रो में। ओके। बट मेनली सिंपल सिंपल केसेस ही हैं। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड केसेस में क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको बात करूँ बेंजीन की, है ना। हाँ सर। बेंजीन में भी क्या होगा, 6 कार्बन है और आपस में सब एक दूसरे से बॉन्डेड है, राइट। तो वहां पे रेजोनेंस आ रहा है। तो तो क्या होता है कि जैसे मान लो दो तरह के हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, ठीक है सारे लोग। एक तरह का हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे CH4 है, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, उसका दूसरे बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना सब। तो अगर वहां पढ़ेंगे तो वहां पे जो जो ऑर्बिटल बनेगा वो पहले पहले इनके बॉन्ड के अलोंग एक तरह से ऑर्बिटल बनेगा, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलोंग द बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन होगा, कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन होगा, कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन होगा, कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन होगा, लाइक दैट। एंड देन यू कैन इंडिविजुअली फोकस ऑन सिंगल सिंगल बॉन्ड। बट क्या होता है, जहां रेजोनेंस लगता है वहां पे बॉन्ड तो घूम सकता है। सो इफेक्टिवली एवरीवन इज हैविंग, तो उसमें क्या करते हैं कि बोलते हैं पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एक एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक दूसरे वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ऑर्बिटल बनाएंगे, और फिर उसको ओवरलैपिंग और कराएंगे। समझ रहे हो? मतलब अभी मैं जैसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बस गाइड कर रहा हूँ कि जैसे एक हमने लिखा बॉन्डिंग, एक लिखा एंटी बॉन्डिंग, इसी तरह से दूसरे वाले डबल बॉन्ड का एक बॉन्डिंग, दूसरे वाले का एक एंटी बॉन्डिंग, राइट। ऐसे आ रहे होंगे, है ना वैसे। अब ये आपस में कंबाइन करेंगे, तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग एक साथ टुगेदर, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग टुगेदर, ठीक है। तो वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, ठीक है। आई होप कि थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग रहा हो, है ना। पहले हम इंडिविजुअल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे पॉलीएटॉमिक है, तो अगर कोई रिलेशन नहीं है आपस में एक दूसरे बॉन्ड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस सिंगल सिंगल जो भी बॉन्ड्स होंगे उनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख लेंगे, ठीक है। अलोंग दैट अलोंग लेट्स से, तो कार्बन हाइड्रोजन के लिए लिख लेंगे, CH4 में कार्बन हाइड्रोजन के लिए लिख लेंगे, सबके लिए। अगर मान लो जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे मान लो ब्यूटाडाइन भी ले लूं मैं, थोड़ा बहुत अगर आपको ऑर्गेनिक याद हो, तो उसमें भी रेजोनेंस हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा है, द रेजोनेंस कैन हैपन। या फिर बेंजीन ले लूं, वहां रेजोनेंस हो रहा है। इन ऑल दोस केसेस व्हाट हैपेंस कि पहले अलोंग द बॉन्ड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, फिर वो आपस में और ओवरलैप करेंगे, एंड देन फिर और मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो कुछ एनर्जी ऑर्डर बनता है, उसका मैं थोड़ा सा आइडिया और दे दूंगा इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने बॉन्ड्स आपको बताऊंगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं, ठीक है। आई विल लेट यू नो।
ये तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ चलो, तो ये बात समझ में आ रही है। तो हमें केवल और केवल उतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में नहीं जाना है, राइट। हमें केवल और केवल सिंपल ये डायटोमिक मॉलिक्यूल ही रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वी आर हैविंग, है ना, यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, वी आर हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। Hence O2 is paramagnetic, ठीक है। O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है। तो ये कंफर्म हो गया इस वाली थ्योरी से। तो यू कैन, if you know the, let's say, this energy order, you can say what is the, let's say, nature of a molecule. You can say, you can tell about which is going to be highest occupied molecular orbital and which is going to be lowest unoccupied molecular orbital, ठीक है। just 1 second, है ना, hold just 1 second. Okay, so what I was saying is, हमें ये पता चल गया कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। अच्छा, ये क्यों जरूरी होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हमने कलर के बारे में शायद थोड़ा बहुत आपको बताया था। तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जंप करते हैं हायर एक्साइटेड स्टेट में, है ना, ये बताया था कलर में। यस, तो यहाँ कलर इस तरह से आता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, है ना, तो वो कहाँ जा रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या है ना, कितना एनर्जी डिफरेंस है। सो ऑल दीज थिंग्स विल कम इन लेट्स से डिस्कशन। तो जहां जहां कलर आ रहा है वहां वहां पर कैसे कलर आ रहा है उसके लिए ये सब आता है, ठीक है। तो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जहां पे वो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो कलर्ड है। वो कलर्ड है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझाते हैं, राइट। जैसे KMnO4 है, अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। KMnO4, ठीक है। तो ये है K प्लस MnO4 माइनस, दैट इज वॉयलेट कलर। इफ यू आर गोइंग टू सी MnO4 माइनस, तो यहाँ पे +7 कॉन्फ़िगरेशन बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, विच इज गोइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Mn। तो जो उसका बनेगा वो +7 बनेगा। अब मैग्नीज सबको पता है कि दैट इज 25। 25 में 7 हटा देंगे तो 18। 18 मतलब आर्गन हो गया, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ना तो K प्लस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, K प्लस इज ऑल्सो 18, ना ही MnO4 माइनस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसमें कलर है ना। तो देयर
this is the, let's say, role over here is going to be played. तो ऑक्सीजन Mn और ऑक्सीजन मिलके आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो उनको ऐसे फिल करेंगे, एंड देन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे कलर आता है, जहां जहां पे ऐसे केसेस आएंगे कलर आने वाले, वहां हम आपको अलग से बता देंगे। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस कलर इज कमिंग, नॉट बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण कलर नहीं आ रहा है, कलर आ रहा है ना, ऐसे, है ना? चलो, हाँ भाई, जिसको डाउट है वो पूछ सकते हैं एनी टाइम। यस, हाँ बोलो वेदांत, क्या डाउट है तुम्हारा? ऊपर वाला पार्ट नहीं समझा। कौन सा वाला पार्ट आप नहीं समझे? हेलो कौन सा वाला पार्ट नहीं समझे? सर, वो जो फॉर्मूला है ना, उसको ऊपर डिराइव कैसे हुआ वो नहीं समझा। मैंने ये बोला कि वो एक्सपेरिमेंटली हम लिख रहे हैं, दूसरा मैंने कुछ आइडिया आपको दिया है। एक्चुअली मैंने आपको और कंफ्यूज करना चाहूंगा तो मैं और कंफ्यूज कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे आप, हो सकता है आपको ये नहीं लग रहा हो, है ना? अब इसमें भी ना, जब ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, वी डोंट नो यार ये यही एंड अप होगा, है ना, और ये यहाँ एंड अप होगा, है ना? डोंट नो ना, है ना, ये नहीं पता है हमें, राइट? तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटली बोला। ऐसे आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि हाँ सर ये तो बहुत आसान है, ये सिग्मा होगा, सिग्मा स्टार होगा, बट यू डोंट नो हाउ मच डाउन इट इज गोइंग टू गो अप, going to go, and how much up it is going to go. So that's why remember, like experimental data. Okay, the experimentally we have determined इनकी energy और फिर हमने लिख दिया ये order ऐसे। ये उसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। पहले आपको 1s में देखना है तो सिग्मा, सिग्मा स्टार, 2s में देखना है, राइट, लाइक दिस। कलर कॉन्सेप्ट नहीं समझा, उसके लिए आपको वो याद रखना है, बोर मॉडल। एनर्जी का डिफरेंस अगर विजिबल रेंज में आता है तो वो कहाँ कलर होता है, दैट इज द रीजन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड से लोअर अनऑक्यूपाइड में देखना होता है। जो भी आपका मॉलिक्यूल बनेगा उसके आप ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे फिलिंग कर लोगे, फिर आप देखोगे कि उसमें जो एनर्जी का ऑर्डर है दैट इज गोइंग टू बी इन विजिबल रेंज और नॉट, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बॉन्ड ऑर्डर? तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे करेंगे? तो उसमें होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding molecular orbital, that is the formula, minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital divided by 2. In short, it is number of electron is n, nb minus na divided by 2. बोलो भाई। yes, आर्या। तुम अपना डाउट मुझे भेज दो आर्या, ठीक है? सेंड मी योर डाउट। तुम्हारी प्रोफाइल पिक क्यों नहीं लगी है? व्हाई यू आर नॉट हैविंग फोटो? मुझे टाइप करके भेजो, ठीक है, अपना डाउट आर्या। तो Nb माइनस Na/2। अब यहाँ देख लेते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। बॉन्डिंग देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, है ना? फिर से देख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। हाउ मेनी इन एंटी बॉन्डिंग? 2, 4, 5 and 6. This is nothing but 10 minus 6/2, which is nothing but 4/2 and then 2. So you understand कि O2 का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है, you can match over here, right? तो ये 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका ना। तो यहाँ पे इस तरह से देखना है। अब यहाँ पे एक और बात, राइट? तो बोला जाता है कि ये
जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, O2 का बॉन्ड ऑर्डर नहीं समझा, सुन लो पहले, है ना। सो वी आर राइटिंग, हमने ये फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया एनर्जी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनर्जी ऑर्डर से मैग्नेटिक बिहेवियर पता चलता है, राइट, बॉन्ड ऑर्डर पता चल रहा है, राइट। So this is going to be number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital. You will write number of electrons and then you can write कि कितना हो गया। मैं क्या बोल रहा था इसमें, you can also understand like this, bonding molecular bonding एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं बॉन्ड बनाने में, है ना। पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। तो ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ऐसे समझ सकते हो, राइट। अब यहाँ पे बॉन्डिंग के कितने बचे, 2 4 6, एंटी बॉन्डिंग के कितने बचे, 2, तो 6 - 2 by 2, तो भी क्या आ जाएगा 4 by 2, 2, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर भी समझ सकते हो। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या, ये दो मिलके बना रहे होंगे सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे इफेक्टिवली बॉन्डिंग के कितने बचे, 4 पाई थे, 2 पाई खत्म हो गए, तो बचे कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फॉर्म 1 पाई बॉन्ड। So that's how we can say 1 sigma 1 pi. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये भी पता चलता है कि किस तरह के पाई बॉन्ड्स बनेंगे, किस तरह के सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, राइट। उसमें एक एक्सेप्शन है जहाँ पे याद रखना है, I'll tell you over, ठीक है। हाँ भाई, सर आपने अभी जस्ट जो बोला ना वो मेरे को समझा नहीं सर, आप प्लीज एक और बार बोल सकते हो सर। हाँ, कोई बात नहीं। What I said is कि यार एक तो ये बहुत आसान तरीका है कि हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकाल लें, 2 4 6 है ना, 8 10, एंटी बॉन्डिंग काउंट कर लें और फिर निकाल, मतलब डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर मिल गया, ठीक है। ये समझ में आया? हाँ सर, यहाँ तक समझा सर। हाँ, दूसरा मैंने बोला अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेट्स से, है ना, बॉन्ड बनाने में। तो ये कैंसिल आउट कर दिया, तो बचे कितने इफेक्टिवली, 2 4 6, 6 बॉन्डिंग के बचे, 2 एंटी बॉन्डिंग के बचे, तो 6 - 2 by 2 ऑल्सो 4, ठीक है, सॉरी 4 by 2 दैट इज 2। तो यहाँ से भी आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल गया। अब यहाँ से क्या बात समझ में आई आपको, यू कैन से हाउ मेनी टाइप ऑफ लेट्स से बॉन्ड्स आर गोइंग टू फॉर्म। तो ये जो PZ वाला है ना, ये तो कैंसिल नहीं हुआ ना किसी से, यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हुआ, राइट। नहीं हुआ, हाँ ये सर। तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बनता है, एक बॉन्ड बनता है, राइट। सो ये हाँ 2 सर। इलेक्ट्रॉन है, इनसे 2 बॉन्ड बन गए। यहाँ 4 पाई के थे, यहाँ पे 2 एंटी पाई। बॉन्डिंग है, तो बचे कितने, यहाँ पे भी 2 बचे, 2 बजे। तो इससे बन गया एक पाई बॉन्ड, इस तरह से। तो ये आपको भी अभी कहाँ काम आएगा, जब मैं एक एक्सेप्शन बताऊंगा C2 का, C2 का एक्सेप्शन बताऊंगा, वहां पे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। वो पूछा जाता है, IIT में 2-3 बार पूछा गया है, एक्सेप्शन है इसलिए पूछा गया है, मैं वहां बताऊंगा। तो पहले तो हमने ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। मान लो लेट्स से किसी ने बोला कि बॉन्ड ऑर्डर मिल गया, नेक्स्ट इज लेट्स से एग्जांपल इज O2+। मान लो किसी ने पूछा O2+ में क्या होगा। अब आप सोच रहे होगे O2+ तो सर हमने देखा नहीं कभी, लेकिन O2+ बनता है, ठीक है। O2+ इज सिमिलर टू लेट्स से O2+ की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज सिमिलर टू xenon, ठीक है। तो O2+ बनता है। If O2+ is present, then total number of electrons, पहला काम यही है, total number of electrons are 15। अब आप यहाँ देख लो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ आप क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, जस्ट रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज गोइंग टू बी ऑर्डर, है ना। ऑर्डर कैसे होगा, O2 है तो O2 के लिए ऑर्डर लिख लेते हैं। तो सिग्मा 1s2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2p सॉरी सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py0, and this is sigma star 2pz0। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, सो वी कैन नॉट से कि ये
लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि ये यहीं पे होगा या यहाँ पे होगा. सो बोथ ऑफ दीज आर होमो, यू डोंट नो, है ना, दोनों की एनर्जी बराबर है. सो दिस इज लूमो, स्टिल इट इज लूमो, है ना. फिर से समझ लेते हैं, हमने ये फिल किया 15 इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, बट वी डोंट नो विच वन इज दिस, है ना. तो ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे लिख देंगे कि ये लूमो हो गया, है ना. लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वी डोंट नो. सो बोथ ऑफ दीज आर होमो, दिस इज गोइंग टू बी लूमो. अब इसमें अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, अच्छा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे, देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक. ठीक है. और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर. तो बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखा जाएगा तो क्या होगा, इफ यू आर गोइंग टू सी द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, एंटी बॉन्डिंग से निकला है ना. तो 10-5/2, 10 बॉन्डिंग में थे O2 में, एंटी बॉन्डिंग में 6 थे, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. सो 10-5/2 दैट इज 2.5. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, दैट इज 2.5. अब यहाँ पे कंपैरिजन कैसे होता है, तो पूछा जाएगा बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन O2 ज्यादा है या O2 प्लस ज्यादा है. तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी मोर. ये बात समझ में आ रही है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. किसी ने पूछा बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो, राइट, किसी ने पूछा बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, तो हम बोलेंगे भाई यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम. सो वंस यू नो द बॉन्ड ऑर्डर, यू कैन इजीली कंपेयर टू स्पीसीज, और उनके बीच में आप बता सकते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी. तो अभी किसी ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि सर N2 प्लस N2 माइनस में कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे. उसमें भी उस पे आएंगे N2 वाले एग्जाम्पल पे थोड़ी देर में. ठीक है. तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप काउंट करो, पहले याद करना है. अभी जब मैं एक और अभी एग्जांपल ले रहा हूं, आपको खुद से सॉल्व करना है. एंड फर्स्ट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू लेट्स ट्राई टू राइट व्हाट इज द एनर्जी ऑर्डर, और उसमें फिल करना है. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना. तब तक आप लोग करो ये, लेट्स से ट्राई टू सॉल्व फॉर एग्जांपल इज O2 माइनस. O2 माइनस को क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड. ठीक है. O2 माइनस, O2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऑक्सीजन में 8, अनदर ऑक्सीजन में 8, सो 16, और एक बाहर से आ गया 17. नाउ डू नॉट चेक दिस ऑर्डर, खुद से लिखो, देखते हैं तुम्हें याद है या नहीं. एट द टाइम आई एम टेकिंग डाउट. सर वो बॉन्डिंग ऑर्डर नहीं समझा, ये जो ऊपर वाला एग्जांपल दिया ना आपने. क्या नहीं समझा सर कि वो 10-5 कैसे है. काउंट कर लो ना, काउंटिंग आती है. हाँ सर पता है कैसे क्या है. कैसे काउंट करते हैं ये बताओ. नहीं सर वो नहीं कि हाँ इंटीग्रल में आना चाहिए ना सर. इंटीजर नहीं आ रहा है ना, हमने पार्शियल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं पढ़ा है सर. हाँ सर. हाँ, तो वैसे ये यहाँ पे भी bond order is just a significance that how much effective overlapping is happening. ओके सर. है ना. आप O2 माइनस का निकालो जल्दी से, बताओ कितना होता है. ठीक है. What are we supposed to find? Very good. सो रहे हो आप, क्या बोला है मैंने, सेम काम करना है बाकी दो एग्जाम्पल में जो किया है.
क्या पूछूंगा मैं आपसे? जो भी समझाया वही तो पूछूंगा कि भाई यही आपको काम करना है, राइट? आई हैव इन्फॉर्म कि भाई ये जो ऑर्डर है, पहले एनर्जी ऑर्डर खुद से लिख के देखो, देन डू द एवरीथिंग कि यार यहाँ पे लूमो क्या होगा, होमो क्या होगा, राइट? एंड व्हाट इज गोइंग टू बी, लेट्स से बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक है या नहीं है। ठीक है, करेक्ट। टाइम दे रहा हूँ ना, आराम से टाइम लो ना, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं बट आई एम नॉट सेइंग। लिखो लिखो अपने आप। गलत अनुष्का। नहीं, why it will be same in all case? You have to fill the electron ना, you have to fill the number of electrons you have to fill। तो जिसमें जहां तक फिलिंग होगी वो जो हाईएस्ट रहेगा वो आपका होमो होगा, उसका जो नेक्स्ट होगा, जो अनफिल्ड होगा, दैट इज गोइंग टू बी लूमो। डाउट है तो पूछो हाथ उठा के। अनुष्का, वाई यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर? सबके सही आए हैं, एक भी बच्चा नहीं है जिसका गलत आया हो। नहीं समझ में आया देन आस्क। हाँ आ गया अभी, ठीक है, ओके गुड। चलो देखते हैं, तो इसमें क्या करना है। O2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने पहले बता दिए, फिर से लिख लो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, आपको मैंने पहले बोला था 1s 2s 2p, ऐसे लिख लो जिनको ये ऑर्डर नहीं याद आ रहा है, राइट? सो सिग्मा फिर पाई, ऐसा। अब बस लिखते जाओ, सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, पाई 2p x, पाई 2p y, फिर पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, देन सिग्मा स्टार 2p z। तो अब इसमें फिल करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से दिस इज 2 4 6 8 10 12 14। इनफैक्ट 14 तक हमेशा ये भरेगा, 14 से ऊपर जब भी आएंगे तब यहाँ इलेक्ट्रॉन भरना चालू होंगे। सो 14 16 17, so this is going to be one unpaired electron, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। होमो इज पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, बिकॉज अगेन यू डोंट नो, है ना, राइट? तो दोनों की एनर्जी बराबर है, यू विल राइट बोथ, एंड लूमो इज गोइंग टू बी सिग्मा स्टार 2pz। और क्या पूछा जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? ये ट्रिक थी, राइट? बॉन्ड ऑर्डर इज 10-7/2, so this is 3/2। अब मुझसे कोई पूछे ही बताओ O2 माइनस और O2 प्लस में किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, देन आई विल से वहां पे 2.5 का ऑर्डर है, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। वहां पे 2.5 है, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड ऑर्डर वहां ज्यादा होगा। कोई मुझसे पूछे किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, देन आई विल से बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कम है इसलिए बॉन्ड लेंथ O2 माइनस में ज्यादा होगी, राइट? वन मोर एग्जांपल, O2 माइनस, दैट इज कॉल्ड peroxide, peroxide आयन, ठीक है। O2 2 माइनस, H2O2 Na2O2, है ना, एग्जांपल देखे होंगे आपने। H2O2 से देख लेते हैं, तो O2 2 माइनस, पेरोक्साइड आयन। यहाँ पे क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so that is going to be 18, so it is going to be similarly over here। यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो 2p ये हो जाएगा, राइट? यहाँ पे 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट? इट इज गोइंग टू बी 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, O2 माइनस इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। O2 2 माइनस इज डायमैग्नेटिक, इसीलिए याद रखना है। देखो जनरली क्या होता है, जनरली, है ना, कोई भी मेटल, जो कोई भी कंपाउंड है वो
पैरामैग्नेटिक होता है मेटल्स के कारण जनरली, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है मेटल्स के कारण। जैसे हमने वेनेडियम ले लिया, वेनेडियम को कोई कंपाउंड है लेट्स से ना BCl2 समथिंग है, तो जहां यहाँ देखेंगे तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना ही है, इसलिए वो कलर्ड होगा, राइट, इसलिए उसमें कलर आएगा। जैसे CuSO4 है, Cu2+ लिखेंगे तो D9 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, राइट, कलर्ड आ रहा है, ठीक है, इसमें कलर आ रहा है। जनरली कैटायन के कारण कलर आता है जनरली, है ना, खासकर ट्रांजिशन मेटल। बट यहाँ क्या होता है, सुपर ऑक्साइड में एनायन के कारण कलर आता है, दीज आर ऑरेंज, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो दीज आर गोइंग टू बी ऑरेंज। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर जहां जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वहां सब जगह कलर आएगा। ऑक्सीजन तो कलर नहीं, कलरलेस गैस है, राइट, तो उस जगह पे ये याद रखना है, जरूरी नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो, है ना, हमेशा कलर आएगा, राइट, तो कई कई जगह पे है, बट एक हिंट है, अगर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर होना मतलब चांसेस ज्यादा है। So superoxides are colored because of this unpaired electron. Those are having orange color. वो भी superoxide बनते हैं, उनका कलर ऑरेंज आता है। Anyway, now we are going to, मतलब additional information है, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। Superoxides are colored, ठीक है, because of anion or because anion is having one unpaired electron and they are having orange color. एग्जाम्पल्स में लिखना चाहो तो KO2, RbO2, सीजियम CSO2, ये बनते हैं KO2, RbO2, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के सुपर ऑक्साइड बनते हैं। एनीवे, नाउ पेरोक्साइड में देखते हैं, पेरोक्साइड में क्या है, वी आर गोइंग टू से, सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग, है ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, राइट, यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर यू कैन से ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल आर पेयर्ड, हेंस डायमैग्नेटिक। होमो अगर मैं लिखूंगा देन इट इज गोइंग टू बी pi star 2px, that is equals to pi star 2py. And if I am going to talk about, let's say, LUMO, then it is going to be sigma star 2pz. And if I am going to talk about, let's say, bond order, तो bond order कितना हो जाएगा 10 minus 8 divided by 2, so 1. So you can visualize, जब हम O2 2 minus की बात कर रहे हैं तो O2 2 minus का में क्या है, ऑक्सीजन, बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 ही है, ठीक है, एक ही बॉन्ड ऑर्डर है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट। अब समझ लेते हैं दूसरा केस, यहाँ पे O2 2 माइनस और F2 दोनों के साथ एक ही होगा, है ना, और F2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 9 18, तो दोनों का नेचर एक जैसा ही है। जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है वहां पे नेचर सेम है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है वहां पे नेचर सेम आएगा, मतलब पैरामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर है, ये सब सेम आएगा। Now there is another order, है ना, case 2, if number of electrons, है ना, if number of electrons are less than number of electrons less than or equals to 14, तो इसमें एग्जांपल आपके आ जाएंगे सब H2, है ना, Li2, राइट, B2, C2, N2, anything etc. सब। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप इसमें भरोगे तो दोनों भरे हुए हैं ना, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो ये दोनों एक साथ लेके जाएंगे पाई स्टार वाले। बेटा उसमें लेस देन 14 लिखा है, यहाँ पे इक्वल टू लिखा है ना, वहां पे ग्रेटर देन 14 लिखा था, सॉरी, और यहाँ पे क्या लिखा था,
greater than 14. That does not involve 14. ठीक है, अब इसमें ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है एक्चुअली में, है ना. द ऑर्डर इज डिफरेंट लिटिल बिट. So you have to remember, just to remember the order is different, you have to remember कि B2 is paramagnetic. Just it is a trick. B2 is paramagnetic, so that you will not make mistake. You will not get confused in case 1 and case 2. Even though if you are going to write the wrong, let's say, energy order, if you know that B2 is paramagnetic, then you will rectify it. That is 10 electrolysis. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी ऑर्डर चेंज है. सो व्हाट इज द ऑर्डर ओवर हियर? सिग्मा 1s एनर्जी ऑर्डर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आ जाती है इसके बाद. तो यहाँ पे पाई स्टार 2px, और सॉरी पाई 2px, pi is having lower energy, pi 2px, that is equals to pi 2py, and then sigma 2pz. This is the difference. That's why I have written two cases. Then pi star 2px. Anyway 14 इलेक्ट्रॉन यहीं पे खत्म हो जाते हैं तो इनकी जरूरत नहीं है, but I will write pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. So the difference is over here. ये याद रखना है. ये this is the, let's say, difference. यहाँ पे इनकी पोजीशन स्विच हो गई. And the reason for this change, so reason for different energy order, we say that mixing of 2s and 2p, है ना, atomic orbitals. So that is sp mixing, or in short it is called sp mixing. अब ये मिक्सिंग क्या है वो समझते हैं. तो होता ये है, जब आपने कार्बन में बॉन्डिंग के बारे में बात की थी कि कार्बन है, बोरॉन है ना, जिनमें ये अच्छे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, राइट. देन यू सेड कि यहाँ पे ये s इस p में चला जाएगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन. एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन s एंड p आर हैविंग कंपेरेबल एनर्जी, है ना. s और p आर हैविंग कंपेरेबल एनर्जी. सो वी आर सेइंग कि यहाँ जो s और ये जो p है, राइट, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं. दे आर गोइंग टू मिक्स टुगेदर. बिकॉज ऑफ दैट, है ना, ये बोरॉन में भी लगेगा, कार्बन में भी, वहां उन सब जगह पे लगेगा जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है. यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है कि s के इलेक्ट्रॉन p के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन विद दैट, जो s है उसकी एनर्जी घट जाएगी और p की एनर्जी, सिग्मा p की एनर्जी बढ़ जाएगी. तो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़, इसकी घट जाएगी तो कोई ऑर्डर में डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है. इसकी एनर्जी बढ़ गई तो ऑर्डर में डिफरेंस आ गया. इसलिए यहाँ पे pi 2px एंड pi 2py ज्यादा आता है. याद करने का मेथड क्या था? B2 इज पैरामैग्नेटिक. तो बस भरो आप B2 को 2, 4, 6, 8, 9, 10. आपको यहाँ दिख जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर कोई गलती से ये वाला ऑर्डर भी लिख लेता है, मान लो, है ना, उसको याद नहीं रहता है जल्दी जल्दी में, तो वो उसको यहाँ समझ में आ जाएगा, अरे यार यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, राइट, है ना. इफ यू आर गोइंग टू फिल देन दिस इज नॉट पैरामैग्नेटिक. तो क्या हो जाएगा आंसर, है ना, आपको क्या हो जाएगा, एकदम अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि ये मैंने गलत लिख दिया है. ठीक है, एनर्जी ऑर्डर. अच्छा, मैं एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, बट फिर भी ये फंडामेंटल है. इससे अगर आप कभी फंस जाओगे तो आप फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ये बात क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई डाउट? नाउ इस एनर्जी ऑर्डर से हम क्या बता सकते हैं, राइट,
we can say about, now you just have to fill directly, है ना. तो जल्दी से लिखो फास्ट. अच्छा, इससे एक और बात पता चलती है कि हीलियम क्यों डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है. हीलियम why it is existing as monatomic not forming diatomic, क्यों वो एक मॉलिक्यूल नहीं बना रहा है. तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. 2 का डबल He2 बनता 2, है ना, हो जाता 4. तो जब आप 4 के लिए लिखोगे तो 4 के लिए क्या होगा? 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, है ना, सिग्मा 1s2. तो टोटल बॉन्डिंग और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय 2, तो 0/2, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 0. So that's why helium 2 cannot exist. इसी में पूछा जाता है क्या हीलियम 2 प्लस एग्जिस्ट कर सकता है? हीलियम 2 प्लस, है ना, अभी हम एग्जांपल कराएंगे तब तो लिख लो ये सब बातें. तो हीलियम 2 प्लस में क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 और 1 यहाँ पे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा वहां पे? 2 - 1/2. तो हीलियम 2 प्लस एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका हीलियम 2 +1 है, +2 नहीं है, राइट. बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट इज गोइंग टू बी हाफ. So that is the beauty of molecular orbital theory. It can tell you that कौन exist कर सकता है, कौन नहीं, कैसा है behavior. All these things can be, let's say, explained over here. अब चलते हैं यहाँ पे ना, examples लिख लेते हैं यहाँ पे. MOT is also hypothetical. अरे on paper कर रहे हैं ना, right? All these theory can explain कि ऐसा हो रहा है ना. शायद आपको वो बात समझ में नहीं आई जब मैंने आपको ये बोला था कि कुछ आपको पता लगाना है, ऐसा होता है, तो आप क्या करते हो? यू जस्ट मेक अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस रिजल्ट्स, यू मेक सम हाइपोथेसिस कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, राइट. अगर आपकी बात सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी तो दूसरा आदमी बनाएगा, राइट. हाँ, करेक्ट अमन. So over here this molecular orbital theory explains a lot of things. Theory है ना, molecular orbital theory मतलब hypothetical, hypothesis on paper, but they are able to explain the results. ठीक है, चलो अब देखते हैं. Now what is happening here? Let's say examples we are writing, let's say H2. H2 में number of electron 2, तो फिलिंग क्या होगी? सिग्मा 1s2, है ना. डायमैग्नेटिक सिंपल है ना, सिग्मा स्टार 1s0, राइट. होमो लूमो हो गया ये. And this is going to be, bond order is going to be 2 - 1, 2 - 0/2, that is 1. H2 प्लस अगर लिया जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1, सिग्मा 1s1. This is homo, this is LUMO. Paramagnetic. Bond order 1 - 0/2, 1/2. He2, है ना. Helium molecule does not exist. Does not exist. Helium molecule does not exist. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Right, we can write number of electrons, total number of electrons
4, right? So if you are going to fill sigma 1s2 sigma star 1s2, so bond order is going to be 2 minus 2 by 2, that is 0 by 2, which is 0. So this can explain. He2 plus, but He2 helium 2 ion, but this exists, right? Number of electrons, that is equals to 3, right? So sigma 1s2 sigma star 1s1, bond order 2 minus 1 by 2, so this is 1 by 2. अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में स्टेबल कौन होगा. अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तब कैसे निकालेंगे विच इज मोर स्टेबल, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. जनरली जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. तो नोट क्वेश्चन है विच इज मोर स्टेबल, H2 प्लस और He2 प्लस. ठीक है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा. सो यहाँ पे याद रखना है, नोट bond order is proportional to bond strength is proportional to stability is inversely proportional to bond length. But when bond order is same, we will check number of anti-bonding molecular orbital, है ना. Higher anti-bonding molecular orbital means more energy. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या सेम है, बट यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आया. सो हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस He2 plus is less stable than H2 plus. फिर से समझ लेते हैं, H2 plus में भी बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है, He2 plus में भी बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है, बट यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है. एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, राइट. सो दैट्स व्हाई. करेक्ट अभिनव. अब इसी तरह से आप निकालो N2 प्लस एंड N2 माइनस. N2 प्लस N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर देखो, ठीक है, और उनमें बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा. सॉल्व N2 प्लस N2 माइनस. तो जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं. Helium molecule does not exist. Number of electrons 4. Then we have written bond order 2/2 minus 2 divided by 2 is 0/2. It is 0. थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. H2 माइनस ऐसे ही H2 माइनस आ जाएगा, है ना, राइट. इट कैन एग्जिस्ट. जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है वो सब एग्जिस्ट कर सकते हैं.
सर एनर्जी ऑर्डर में आपने जो लिखा है अभी इसका सबका एनर्जी ऑर्डर लिखना है, उसमें वो N2 प्लस N2 माइनस सबका लिखो। हाँ बोलो। अच्छा, जब N2 नो माइनस सर हो रहा आपने है जो ना तो अभी नंबर ऑफ दिया था इलेक्ट्रॉन 15 हो जा रहे हैं। सुनो, N2 माइनस जब हो रहा है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 हो जा रहे हैं, बट आप ऐड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन इन N2 में, है ना। वैसे तो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको याद यही रखना है, आप इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर रहे हो N2 में, तो जो एनर्जी ऑर्डर वहां पे लिखा हुआ है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ना कि आपको ये सोचना है 15 है तो फिर वो ऑक्सीजन के हिसाब से लिखेंगे, राइट। यस, क्या है डाउट सर तुम्हारा? डाउट नहीं समझ में आया मुझे। सर इसमें जो सिग्मा 2p z का स्टार 2p z स्टार वो उसका एनर्जी कम रहेगा ना सर? किससे? पाई 2p x एंड पाई 2p y से स्टार। नहीं 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 नहीं, वो सर ये ऊपर आपने जो एक्सपेरिमेंटल, इसमें लिखा था कंफ्यूज नहीं होना है, ये यही ऑर्डर है ना। अभी हम एक आध एक्सेप्शन और बताएंगे, उनमें ये ऑर्डर चेंज भी हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन नीचे कितना जा रहा है, कौन कितना ऊपर जा रहा है, राइट। समझ रहे हो मेरी बात? ओके सर। उसमें तो ओके सर, फिर बहुत तो मेरे इनफाइनाइट को लगा वो पॉसिबिलिटी जितना है। नीचे जाएगा उतना ऊपर जाएगा वो। हाँ, तो अब दो दो चीजें हैं मान लो, है ना। एक वाला जो है, ये दोनों आपस में कंबाइन हुआ, ये नीचे गया, ये ऊपर गया। ये दूसरे वाले ऊपर में है। हो सकता है वो उतना ऊपर और इतने नीचे ना जाए, तो फिर ऑर्डर चेंज होने लग जाएगा। यू विल सी सम हाँ एग्जांपल, एक सर, हाँ एक्सेप्शन सर। बताऊंगा मैं आपको, CO प्लस का बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। बट वेट फॉर इट, है ना। बोलो झूठ, क्या डाउट है? हो गया? ठीक है। What comes after sigma 2pz in energy order for less than 14 इलेक्ट्रॉन? तो पाई स्टार आएगा 2pz के बाद। चलो देखते हैं, एक बार लिख दे रहा हूँ, N2 प्लस और N2 माइनस का, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल? N2 प्लस, ठीक है। N2 माइनस में क्या होगा? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू सी N2 प्लस, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 13 इलेक्ट्रॉन्स। सो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, ठीक है। सो इनको के भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय के एंड के। अगर कहीं पे लिखा है डू नॉट गेट कंफ्यूज, है ना, के सेल है, के सेल है, आपस में मिलके बना रहे हैं, राइट। हो सकता है इसको एल एल लिख दिया जाए, एल, बट एल में प्रॉब्लम ये है कि आपका 2p भी है, तो जनरली इसको एल नहीं दिखेगा आपको, यही एस दिखेगा। कहीं लिखा होगा एल एल, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक वो एस को ही जनरली रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम ही होंगे, लेट्स से, तभी आपको आपको एल एल दिख सकता है, ठीक है। जैसे एल लिथियम 2 है, लिथियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो के एल लिख सकते हैं वहां पे, राइट। एनीवे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार अगर ऐसा दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। ये क्या है? के सेल, के सेल मतलब n equals to 1, right? Anyway, sigma 1s2, sigma 2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, then we are going to have pi 2px, that is equals to pi 2py. Then sigma 2pz, so this is 4 8 10 12 14, 14 हो गया। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकाल दो एक इसमें से, तो ये हो गया pi star 2px 0, pi star 2py 0 एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। एनीवे इसकी जरूरत नहीं है हमें, वी डोंट नीड टू राइट।
So this is going to be your LUMO. This is going to be your HOMO. Anyway, another thing, paramagnetic bond order, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने हैं 2 4, बस इधर तो है नहीं 4, टोटल कितने हैं 13, तो 13 में से 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9, तो 9 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, सो 5/2 2.5। इसी तरह से अगर मैं लिखूंगा N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन, यू आर गोइंग टू इंसर्ट 1 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, ठीक है। So this is going to be sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px 2, pi 2py2, sigma 2pz2, and then pi star 2px1, that is equals to pi star 2py0, ठीक है। and then this is sigma star 2pz0। इसमें आपका क्या हो जाएगा होमो, this one is going to be your homo and this one is going to be your LUMO। anyway if you are going to see bond order, ये भी पैरामैग्नेटिक है, 1 unpaired इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, if you are going to see bond order तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग 2 4 और एक यहाँ पे 5, तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉन्डिंग 10 आए, 10 minus 5/2, so this is also 5/2, bond order is 2.5। अब इन दोनों में ज्यादा कौन स्टेबल होगा, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, देन विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, ये वाला, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉरी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने 4 हैं और इधर कितने 5। सो रिमेंबर दिस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सेम आया, आप बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे नहीं देख सकते। जैसे अगर किसी ने मुझसे पूछा होता कि बताओ भाई N2 माइनस और N2 में बताओ, तो N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाता है ना, N2 में अगर ये इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो 14 होगा, तो आएगा 10 minus 4 डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। तो मैं कहता कि N2 ज्यादा है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बट अगर कोई कह रहा है कि N2 माइनस और N2 प्लस में बताओ, देन बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है। फिर कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, ठीक है, ये देखना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बॉन्डिंग में किससे देखना है आपको, एंटी बॉन्डिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना कि 14 से ज्यादा है, बट भर किस में रहा है इलेक्ट्रॉन, N2 में भर रहा है ना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, राइट। इसीलिए वहां पे एग्जांपल में O2F2 लिखाया था, राइट। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। वैसे भी अगर मान लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो भी रहा है, आप इसको चेंज भी कर दोगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, है ना, ऑर्डर ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये इंटरनल चेंज होंगे, राइट, होमो लुमो सेम ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बट ये रिमेंबर ये रखना है कि N2 में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो N2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। Since number of electrons in anti-bonding molecular orbital for N2 minus is more, hence N2 is less stable. तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने N2 का इलेक्ट्रॉनिक मतलब मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। जो करोगे आप उस N2 से करोगे ना, N2 प्लस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, N2 माइनस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, राइट।
और थोड़ा ऊपर भाई, पहले यहाँ तक लिख लो। जिन लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है, नहीं लिखा है, यहाँ तक हो गया। खुद से करके देखो ना, मैंने टाइम भी दिया था, आप लोग कॉपी कर रहे हो बैठ गए, गलत बात है ना। बोलो। जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक, करेक्ट। उसका मैग्नेटिक मोमेंट वही फॉर्मूला है, √n × n+2, उससे निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का अगर पैरामैग्नेटिक नेचर निकालना है ना, अगर N2 ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो हम वैसे निकाल सकते हैं। सर एंथैल्पी बढ़ेगी ना, किसमें एंथैल्पी बढ़ेगी? तो एनर्जी बढ़ेगी तो फिर स्टेबिलिटी कम होगी। करो अपने हमको म्यूट, अनम्यूट। सानिया क्या कह रहे हो? I have given the permission. बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी स्ट्रेंथ है ना। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी जाएगी। ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना। बॉन्ड एनर्जी का मतलब है एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब स्टेबिलिटी कम नहीं है ना। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो गया, राइट। ओके, ठीक है सानिया। अरे भाई ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी, अरे सारी एनर्जी का मतलब क्या होता है कि केवल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन याद नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती थी तो ऊपर की तरफ जाते थे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कम होती जाती, सॉरी बढ़ती जाती थी, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। इसका मतलब है वहां एनर्जी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी, घट रही थी ना। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मान लो इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इनफाइनाइट तक ले जाना है, घट रही है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी वाली एनर्जी की बात हो रही है। वैसे ही है यहाँ पे, अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है उसका मतलब क्या है, वो अभी ज्यादा स्टेबल है, उसको ब्रेक करने में, तोड़ने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो जितना ज्यादा स्टेबल, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ जो एनर्जी की बात हो रही है वो हम बात कर रहे हैं, दैट इज एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, जब वो बॉन्ड बना रहा है, एंटी बॉन्डिंग और
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनर्जी का मतलब देखो, एनर्जी का मतलब भी अलग अलग है, राइट। बॉन्ड एनर्जी को ऐसे समझो कि कोई अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर से हमने किया। या तो वो स्टेबल होगा तो एनर्जी ज्यादा ज्यादा लगेगी ब्रेक करने में, उसकी खुद की एनर्जी ज्यादा है ये नहीं कह रहा हूं मैं, उसकी खुद की एनर्जी कम है, इसको ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। नाउ लेट्स से, तो ये हो गया, राइट। अब इसमें क्या है ना, हम कैन राइट टेबल, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल सी टेबल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, bond order you can write, magnetic behavior you can write, and we can write some examples. तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आफ्टर बोरॉन से स्टार्ट कर रहा हूं, B2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 है, ठीक है, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो B2 में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, याद रखना है 10 में ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। अभी थोड़ा लिखो, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। देन I'll give you a symmetry, यहाँ पे आप बना सकते हो, बस यही टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ समरी ऑफ एवरीथिंग। एग्जाम्पल हो गया B2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं तो बॉन्ड ऑर्डर है 2, दैट इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक, एंड एग्जाम्पल्स आर C2 2 minus, sorry C2 not 2 minus। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2.5, एंड दिस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। अभी लिख लो, मैं बता दूंगा। दिस इज गोइंग टू बी, ये क्या निकल सकता है, दिस इज गोइंग टू बी N2 plus, you can say, and you can say कोई बात नहीं, ये टेबल लिखते जाओ, ठीक है। अभी N2 plus over here, if number of electrons are 14 then bond order is 3, this is going to be diamagnetic, and answer is, the options are, let's say examples are N2. Now here you can write some more examples, so you can write Cn minus hetero वाले, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, 6 plus 7 13, एक एक्स्ट्रा से बाहर से आया 14, Cn minus you can write NO plus, ठीक है, like that, NO plus C2 2 minus, all these are 14 electron series। अगर ऐसा कुछ होगा तो सब में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 3, all are going to be diamagnetic। if 15 है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फिर हो जाएगा 2.5 पैरामैग्नेटिक। एग्जाम्पल इज N2 minus NO, ठीक है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 16 हो जाएंगे देन बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 पैरामैग्नेटिक, है ना। इसमें 15 में आप O2 प्लस भी लिख सकते हैं, O2 प्लस, so this is O2। then if number of electrons are going to be 17, then bond order is 1.5, this is going to be paramagnetic, it's going to be O2 minus, and if number of electrons are going to be 18, then bond order is going to be 1, then it is going to be diamagnetic, and यहाँ पे example आएगा, that is going to be O2 2 minus F2,
अब थोड़ा समझते हैं, ये एक्चुअली में रिजल्ट्स हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं, ठीक है, बट इनको याद करना बहुत आसान है रिजल्ट्स को, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप पूरा पहले सॉल्व करो बैठ के, और फिर आप ये बताओ कि भाई इसमें पैरामैग्नेटिक, तो उसमें टाइम जाता है, बट ये हमें पता होना चाहिए सॉल्व कैसे होता है, सो दैट वी कैन कोरिलेट। बट ये आसान का तरीका क्यों है, पहले तो समझते हैं कि हमें दो बातें याद रखनी है। जब भी कभी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली वो तो पैरामैग्नेटिक होने ही है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक अनपेयर्ड तो आना ही है। जब भी कभी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर मैं बात करूं जैसे 13, 15, 17, इन सब में तो बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही। इन एडिशन टू दैट वी हैव टू रिमेंबर B2 एंड O2, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, B2 इज पैरामैग्नेटिक, मैं बता चुका हूं ऊपर, और O2 के बीच में भी मैं बता चुका हूं दिस इज पैरामैग्नेटिक। तो ठीक है, जब भी कभी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और 10 और 16 हो, तो देन इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसके अलावा और कोई इवन नंबर है, जैसे मान लो 12 हो गया, आपका 14 हो गया या 18 हो गया, देन इट इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक। तो ये समझ में आया ट्रिक, रिमेंबर हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने बस, है ना। N2 में 14, Cn माइनस में 14, NO प्लस में 14, C22 माइनस में 14, राइट। तो सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के हिसाब से चलता है क्या सर ये? हाँ हाँ, मतलब सर वो फॉर एग्जांपल वो 13 का बॉन्ड नंबर 2.5 पैरा, तो N2 प्लस का कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रहेगा तो उसमें भी सेम कंडीशन रहेगा सर? हाँ कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये मैंने जैसे मान लो एग्जांपल दिए, आपको कोई कोई अगर और एग्जांपल भी दे रहा है तो आपको बस ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। अच्छा, आप आपके जो सिलेबस में वो नंबर ऑफ 18 तक ही है ना। तो जैसे अब आपको सर बोलो कि 36 हो जाएगा तो कितना होगा, एक आध एग्जाम्पल होगा मैं बता दूंगा। जैसे ठीक है। जैसे S2 इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक बिकॉज O2 इज पैरामैग्नेटिक, दैट्स व्हाई H2 इज पैरामैग्नेटिक, सेम उसमें भी सेम बिहेवियर आता है। दैट इज द ओनली एग्जाम्पल दे आस्क कि अगर वो 18 से ऊपर जाएंगे तो वो S2 के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखा है वो सल्फर का। सर लेकिन सर ये O2 के पूरे ग्रुप में एप्लीकेबल नहीं है ना सर, सिर्फ S2 तक ही है क्या? केवल S2 तक ही बोलते हैं, आगे भी अगर Se2 भी बोलेंगे तो शायद हम पैरामैग्नेटिक भी बोलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब सर मतलब ग्रुप में भी सिमिलैरिटीज रहते हैं मतलब? हाँ हाँ, यहाँ पे ओके सर, एक्चुअली में क्या है, वो एनर्जी का ऑर्डर सिमिलर रिपीट होता रहता है इसलिए, ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो बट यस सर। आपको याद रखना है कि S2 इज पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं, सिमिलरली, यहाँ पे यहीं पे लिख लो सिमिलरली S2 इज पैरामैग्नेटिक। ये एक्चुअली P ब्लॉक में दे रखा है, अभी वहां पे हम पहुंचे नहीं है, बट ठीक है, O2 की तरह ही S2 में बता रहे हैं। बाकी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बस 18 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर आप समझ गए कि यहाँ पे आ रहा है sp मिक्सिंग के कारण पैरामैग्नेटिक, और ये तो हमने प्रूव किया ही है 16 इज पैरामैग्नेटिक O2, इसी के कारण तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, राइट। सो दीज आर पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में आपको 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने और हो गया। अब आप देखो कि 8 इलेक्ट्रॉन तक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन तक हम जो भर रहे थे 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ तो कोई ऑर्डर चेंज नहीं है, यहाँ तक सब जगह सेम ही ऑर्डर है ना। तो यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन बॉन्ड ऑर्डर में कुछ नहीं था, 0। उसके बाद बॉन्डिंग वाले भर रहे हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, राइट, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो 1 10 के लिए, 12 के लिए 2, है ना। 8 माइनस 10 कितना हुआ, है ना, आपने 8 हटा दिए तो 10 में से जो केवल बॉन्डिंग वाले होंगे वो कितने होंगे, आप 8 हटा दो, 8 का कंट्रीब्यूशन 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, है ना। 12 माइनस 8 मैं पहले बता चुका हूँ ना, इनका इनका कंट्रीब्यूशन कैंसिल आउट हो जाता है, तो 12 माइनस 8 तो यहाँ 4 हो गया, 4/2 तो 2 आया बॉन्ड ऑर्डर। सो बाय इंक्रीमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन द बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज बाय हाफ। कब तक, जब तक 14 है। 14 के बाद एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट होते हैं, पाई स्टार, राइट। दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू डिक्रीज बाय इंक्रीमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आपको याद रखना है ना, बॉन्ड ऑर्डर 10 से लेके 14 तक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। 14 में N2 में तीन बॉन्ड ऑर्डर होता है, सबको पता है, N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है। 14 में 3 है, उसके बाद जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा, बस आसान है, ठीक है।
जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपका, पाई स्टार में आ गया तो 2.5, फिर एक और इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में आया तो 2, फिर एक और इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में आया तो 1.5, फिर एक और आया ऐसे, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इस पाई स्टार में भर रहे हैं, मतलब एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, तो 14 तक बढ़ेगा फिर घटेगा। अब आपको ये टेबल आसानी से याद हो सकती है, ठीक है। क्या 2-3 पॉइंट है जो याद करने, यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का 90% क्वेश्चन बस यहीं से आते हैं। एक आध क्वेश्चन वो नोडल प्लेन से आता है, जो हमने लास्ट क्लास में समरी बनवाई थी आपको, तो बस वो 2 टेबल याद रखनी है, आपका हो गया पूरा पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये वाली टेबल और जो लास्ट में बनाई थी एक समरी, उसमें नोडल प्लेन पूछते हैं कि बताओ सिग्मा में क्या होंगे, पाई में क्या होंगे, बॉन्डिंग पाई स्टार में क्या होंगे, या सिग्मा स्टार में क्या होंगे, दैट्स इट, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आपके लगभग 25% चांसेस है कि पूरे केमिकल बॉन्डिंग के 25% क्वेश्चन इसी से आए हैं, है ना, बस इन्हीं 2 चीजों से। उसमें बस यही एग्जाम्पल घुमा घुमा के पूछते रहते हैं वो, राइट। इफ यू विल सॉल्व योर एक्सरसाइज यू कैन कोरिलेट, जो मैं बात कह रहा हूँ। बट मुझे 1-2 एक्सेप्शन और भी बताने हैं इसमें। तो ये बात समझ में आ रही है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे देखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी लेट्स से इवन, तो वो डिफॉल्ट, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड, देन इट इज डिफॉल्ट पैरामैग्नेटिक। इवन के केस में 10 और लेट्स से 16 याद रखना है, दोज आर गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इवन नंबर, जैसे 12 हो गया, 14 हो गया, या फिर 18 हो गया, then it is going to be diamagnetic. For bond order you just have to remember कि 10 से bond order 14 तक बढ़ेगा, right, फिर उसके बाद घटेगा, बस this is what you have to remember, फिर आपको आसान पड़ेगा ये। अब समझते हैं कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई लिख रहा है तो लिख लो भाई, है ना, तब मैं डाउट ले लेता हूँ, राइट। We will write 2-3 more example and molecular orbital theory खत्म हो जाएगा। सर सर वो आपने ऊपर एक एग्जांपल था ना, उसमें आपने O2 का ही था सर आई गेस, उसमें सर आपने बताया था कि कैसे सिग्मा बनता है, कैसे पाई बनता है। सर वो मेरे को पाई के लिए नहीं समझ रहा क्या किया था। पाई में देख लिया, नेट पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नेट आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं बॉन्डिंग। हाँ सर। तो जितने नेट सिग्मा होंगे डिवाइड बाय 2 कर दो, जितने नेट पाई होंगे डिवाइड बाय 2 कर दो। ओके सर। सबको जैसे मैं बताऊं, मैं बोलूं कि O2 2 माइनस है, O2 2 माइनस को अगर भरोगे आप तो इसमें क्या होगा, लास्ट में आएगा जैसे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, है ना, फिर सिग्मा 2p z2, फिर पाई 2p, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2, देन सिग्मा स्टार 2pz0। तो अब यहाँ देखो, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, ये पाई ने इसको कैंसिल करते गए, राइट। हाँ सर। बच्चा क्या ये, इसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1 है, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। समझ गया सर, यस, थैंक यू सर, यस। मान लो N2 की बात करें तो N2 का ऑर्डर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, है ना। N2 14 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा है, तो ये आपस में कट गए, ये कट गए। अब यहाँ पे कितने बचे, पाई 4, इनको कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 पाई बॉन्ड, और यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 2 तो 1 सिग्मा बॉन्ड, ऐसे 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड। ना इसमें अब क्या बात हम और समझ सकते हैं, let's see, और क्या समझ सकते हैं इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको समझते हैं। पहला एक्सेप्शन है C2 के लिए। तो C2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं is 12. So if you are going to fill 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, then pi 2px2, pi 2py2, ठीक है।
C2 का ये मॉलिक्यूल जनरली आपको एग्जिस्ट नहीं करता है, बट कब एग्जिस्ट करेगा, जैसे वेपर्स बनाए हमने, है ना, डायमंड ग्रेफाइट, इनको ब्रेक कर रहे हो एंड इनकी वेपर्स बनेंगी तो C2 बन सकता है मॉलिक्यूल, ठीक है, वेपर्स फॉर्म में, जैसे H2 बन सकता है, राइट, O2 बन सकता है, वैसे ही C2 भी बन सकता है. सो दिस इज गोइंग टू बी, अब यहाँ पे सिग्मा 2pz 0 होगा, तो ये इसका होमो हो गया और ये इसका लूम हो गया. इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, राइट, कि बोथ बॉन्ड ऑर्डर क्या है यहाँ पे, सो 2 4 5 इनसे तो कोई होना नहीं है, है ना, कंट्रीब्यूशन तो यहाँ देख लेंगे. दिस इज गोइंग टू 4, मतलब मैं लिख लेता हूँ नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से. बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट बॉन्डिंग कितने 2 4 6 8, एंटी बॉन्डिंग है 4 by 2 2, एंड बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड. ये है इसमें इंपॉर्टेंट बॉन्ड, और ये बात केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही समझ सकते हैं, वरना नहीं तो क्या होता है, जब भी बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा तो बाय डिफॉल्ट होता है 1 सिग्मा 1 पाई. ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई. यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये दोनों, यहाँ पे देखो कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, पाई. तो जो बॉन्ड आएंगे वो कौन से होंगे, पाई. तो बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड. ये एक्सेप्शन समझ में आया. इसीलिए मैंने ये समझाया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल पाई और सिग्मा, सो दैट यू कैन रिलेट हियर. ठीक है, तो याद रखना है C2 में सिग्मा बॉन्ड नहीं है, बोथ आर पाई बॉन्ड्स, याद रहेगा. ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम. एक तो ये बात थी. दूसरी बात इसमें क्या है, सर ये ऐसा केस इसमें ही होता है ना, और कोई नहीं है, बस case? इसी में है. हाँ, इसी में है. Okay, sir. और दूसरा केस कैसा है, एक एग्जांपल में पूछा गया था, इफ ना अनदर लेट्स से क्वेश्चन, इफ sp mixing is not considered, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, in C2, if sp mixing is not considered in C2, what is the magnetic behavior of C2? ये क्वेश्चन पूछा गया है IIT में. ठीक है, इन्होंने हाइपोथेटिकली बोला कि अगर sp मिक्सिंग कंसिडर नहीं होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा. if sp mixing will not be considered, है ना, is not considered, तो क्या होगा, एनर्जी ऑर्डर विल नॉट चेंज. तो क्या होगा, जो आपका पहला हमने केस लिखा था जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 14, वो वाला ही चलेगा. करेक्ट सुशील. तो यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर विल नॉट चेंज, तो क्या हो जाएगा, हेंस सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आएगा, सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px1 पाई. ये कब है, ये याद रखना, जब हम जब क्वेश्चन में लिखा है sp मिक्सिंग इज नॉट कंसिडर, ये मैं नॉर्मल नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, नॉर्मल केस में तो उल्टा है ना, एनर्जी ऑर्डर चेंज रहता है, राइट. तो वहां पे C2 डायमैग्नेटिक है, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेंस C2 इज पैरामैग्नेटिक. ये बात समझ गए. ठीक है, another exception, bond length in CO is 1.128 angstrom, but bond length in CO plus is 1.115 angstrom. Why, है ना, why bond length is decreasing. अब यहां समझते हैं ये मैंने क्यों बताया, ये ऐसा हो रहा है. बॉन्ड लेंथ इन CO is 1.12 एंगस्ट्रॉम, तो बॉन्ड
मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO इज, नीचे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO is 14, hence bond order is 3. अभी हमने देखा था जैसे 14 होगा 3 हो जाएगा. अब ये कहना है कि CO प्लस में जो ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ है वो इससे भी कम है, इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा. बट CO प्लस में बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 13. 13 के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन थी तो 2.5 होना चाहिए था बॉन्ड ऑर्डर, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए था, तो बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है. ठीक है, फिर से समझते हैं क्या कह रहा हूँ. CO में इलेक्ट्रॉन है कितने 14, CO प्लस में कितने 13. अकॉर्डिंग टू जो अभी हमने पढ़ा है, वहां पे इसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कितना होना चाहिए था 3 और यहाँ कितना होना चाहिए 2.5. तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए थी, बट यहाँ बॉन्ड लेंथ हो गई कम. तो वाई बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीजिंग, ये हम कह रहे हैं, है ना. रीजन यहाँ पे क्या है कि एनर्जी ऑर्डर चेंज हो जाता है. हेटेरोएटॉमिक स्टडीज है तो मैंने बताया था कि जब ऐसा कभी होगा तो एनर्जी चेंज हो सकता है, इसमें होता है चेंज. ठीक है, एनर्जी ऑर्डर in CO plus, number of electrons is 13 but bond order is not 2.5. वहां पे होता क्या है, तो if I am going to let's say draw properly carbon 1s2 है ना, यहाँ पे 2s2 and this is 2p2. and here oxygen. तो होता यह है कि इनकी एनर्जी सेम नहीं है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई इनकी एनर्जी सेम नहीं है, राइट. यहाँ पे this is I'm just writing, let's say 1s2 2s2 and this is 2p4. तो जब इनका आपस में कोरिलेशन बन रहा है ना, तो ये आया आपका सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s ये कुछ एनर्जी का ऐसा आता है, सिग्मा स्टार 2s इसकी एनर्जी और बढ़ जाती है. किससे बढ़ जाती है, सिग्मा 2p z है ना, तो पहले पाई आएगा. सो ये एक मिनट 4 5 6 पाई 2px, फिर ये आएगा आपका सिग्मा 2pz और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आता है, कुछ ऐसा आता है. तो आप देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऐसा एनर्जी ऑर्डर हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया है, हमने ऊपर नहीं लिखा है तो एनर्जी ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. एनर्जी ऑर्डर, हेंस एनर्जी ऑर्डर इज, आप चाहो तो एनर्जी ऑर्डर लिख लो केवल, has changed sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 फिर pi 2px pi 2py sigma 2pz sigma star 2ps 2 6 8 10 12 13. So hence bond order is nothing but number of electrons in bonding 7, sorry 10, एंटी बॉन्डिंग 2 और 1 3, 3.5. तो ये जस्टिफिकेशन है. तो एनर्जी का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा. एक आध एग्जांपल है जहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा सेम ही रहे, इट इज गोइंग टू चेंज. एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट्स व्हाई वी आर एबल टू एक्सप्लेन कि देखो CO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घटेगी. These are exceptions. ठीक है,
पिछला पेज आएगा, ऑड पेज, तो अगर मैं 2 पेज करूंगा तो मुझे पिछला पेज दोबारा लिखना पड़ेगा, सो नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इम्पैक्ट। जो पहले जिन्होंने पहले नहीं लिखा है तो बस दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बस एक सब टॉपिक बचा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड आवर चैप्टर इज कंप्लीट। डन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वॉन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्स, तो इस वीक खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आपको करना है होमवर्क, मैं देख लेता हूँ। तो अब आपके एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, देन यू कैन डेडिकेट मोर टाइम टू केमिकल बॉन्डिंग। अभी तक पीरियोडिक ही पढ़ रहे थे। सो मेरे हिसाब से हमने जेई मेंस वाले करा दिए थे, गेट इक्विप्ड टू जेई मेंस। पहले तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले क्वेश्चन करने, डाइपोल करा चुके हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस हैं लगभग 19। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर रह जाएगा। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट टू सॉल्व गेट इक्विप्ड टू जेई एडवांस। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन छोड़ देने, बाकी आप करते जाना। जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन आए वो छोड़ देना। सो योर होमवर्क इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड गेट इक्विप्ड टू जेई एडवांस के टिल क्वेश्चन नंबर 27, है ना। पूरा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज हैविंग अराउंड 19 क्वेश्चंस, एंड ये 27 क्वेश्चंस का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले छोड़ देना। ठीक है, दैट्स इट। हाँ बोलो। सर मुझे एक पेपर के रिलेटेड एक डाउट था। बोलो। सर एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट में जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होएगा ना, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है इसके लिए। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। अगर हायर से इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा तो फिर उस पोटेंशियल एनर्जी उसका डिक्रीज होएगा ना, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है इसके लिए। हाँ, डिक्रीज होगा ना, तभी तो हाँ सर, लोअर वही पूछा एनर्जी था, स्टेट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, लोअर एनर्जी स्टेट बोल रहे हैं ना, है ना। सर सर। भाई टोटल एनर्जी जो है वो होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। तो टोटल एनर्जी का बिहेवियर पोटेंशियल एनर्जी की तरह है। तो टोटल एनर्जी में भी क्या हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल इज गेटिंग स्टेबल, अगर वो डाउन जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। और टोटल एनर्जी का बिहेवियर काइनेटिक एनर्जी के अपोजिट है। काइनेटिक एनर्जी के अपोजिट है, इसलिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेक्चर फिनिश्ड। यस, और किसी को कोई डाउट? डन। फ्रीक्वेंसी तो आपको फिर लैम्डा की फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, पहले तो ये देखो। अगर इलेक्ट्रॉन की देख रहे हो तो आपको फॉर्मूला वही याद है, 2πr/T लगाना है, राइट। उससे हम निकालेंगे सॉरी टाइम पीरियड निकाल के फिर करेंगे। और अगर आप फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो फोटोन की, तो फोटोन की बढ़ेगी क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा, इसलिए। हाँ ले रहे हैं डाउट, जस्ट करंट वेट। बताओ भाई। सर सर आप बोले थे ना कि सल्फर का एग्जांपल भी बताऊंगा। S2। हाँ सर।
तो H2O2 की तरह ही है एक्चुअली। उसमें क्या होता है, उसमें ये जो केस हम 2p के लिए लिख रहे हैं ना, वही केस वहां पे 3p के लिए आने लग जाता है सल्फर में। बस इतना ही है, बस तो इतना याद रखना है ना। बस। हाँ हाँ ओके सर, समझ। थैंक यू सर। बोलो जो। हाँ सर, सर मैंने हाँ, भेजा आपको व्हाट्सएप पे। एक मिनट। सर ये कल एमटी का ही है सर, ये पेपर 1 में भी आया था सर, सेम टाइप का, और ये पेपर 2 का है। A compound which contains 1 atom of X and 2 atoms of Y for each 3 atoms of Z is made up by mixing 5 gram X, this many grams, and these grams Z. If only 4.4 gram of compound results, then the value of atomic mass of Y divided by 10 is. ठीक है, ये एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। ये क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड में XYZ है, ठीक है, हाँ कितने सर। हैं पता नहीं, राइट, बट उन्होंने एक रिलेशन बोला है, हर एक x के एक के लिए 2 y होंगे, है ना, और हर एक 2 y के लिए 3 z होंगे। उसका मतलब है x plus 2y plus 3z is going to form कुछ कंपाउंड x by 2z3 whole n, जो भी है, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको बदल गया 1 2 3। क्या पूछा है इन्होंने, 5 ग्राम ऑफ x लिखा हुआ है यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ x एंड z आर 60 एंड 80, तो ये हो गया आपका मोल्स कितने हो गए यहाँ पे 5/60 एंड 0.03 ग्राम एटम्स ऑफ z का मतलब हो गया मोल्स 0.03, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। एंड 1.15 into 10 to power 23, 1.15 into 10 to power 23 डिवाइड बाई 6 कर दो, ठीक है। 1.15 है क्या, 1.5 होता तो कट जाता, ये कटेगा नहीं। इंटू 6 into 10 to power 23 करोगे तो ये कट गया, ये आप देख लो इसको कितना आएगा, 6 से हो गया ये 60 अप्रोक्सीमेटली 0.19 है ना, 19 आगे 0.1। अब इफ ओनली 4.40 ग्राम ऑफ कंपाउंड रिजल्ट्स, तो मान लेते हैं ये n हटा दो, इसको कंपाउंड यही है, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 60 प्लस y का मान लो हमें नहीं पता है तो 2y प्लस z का 80 है ना, तो 240, so this is going to be 300 plus 2y. How many moles are going to form here, 4.4 divided by 300 plus 2y, ठीक है। अब ये हम इंफॉर्मेशन मिल गई, अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट लगा देना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, सबसे मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना है तो 5/60, सो 1/12 मान लो, ये 1/12 की वैल्यू कितनी होती है 0.0833 ऐसा कुछ करके आएगा, 0.0833, राइट। दिस इज 0.19, दिस इज 0.03 इन। अब ये तो हो गए मोल्स, अब निकाल दो मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गए 0.0833 डिवाइड बाय 1, 0.19 डिवाइड बाय 2, 0.03 डिवाइड बाय 3, तो यही सबसे कम हो गया 0.01। तो कंपाउंड में इसी के हिसाब से बनेगा, ठीक है। अब इसी के हिसाब से बनेगा तो फिर क्या होगा, इसके भी इतने ही 0.01 मोल बनेंगे, है ना, इसके भी 0.01 मोल मिलेंगे, विच इज इक्वल टू 4.4 डिवाइड बाय 300 प्लस 2y, इसको कर दो यहाँ पे 440, so this is going to be 300 plus 2y equals to 440, y equals to 70। क्या करना था, डिवाइड बाय 7, तो 7 आ गया है ना, 10। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर इसके पेपर 1 में भी ऐसे ही सिमिलर आया था, लेकिन उसमें हमको n का वैल्यू, मतलब n का वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था वो। अच्छा, और इसमें हमको y का एटॉमिक मास निकालना था इसमें। ठीक है, थैंक यू। चलो फिर ओके। और कोई डाउट, वी आर एंडिंग दिस क्लास, ठीक है, ओके। तो ये होमवर्क करके लाना, वी विल डिस्कस।
बाय बाय।